Okay, let's go question by question. So, sessional. I deliberately didn't post this solution because I wanted you to yourself work out all the solutions. Sessional one, VCL 102. Let's solve this. All right, question 1A. What is the question? See here. Convert the following number to base 16 representation. Okay, what is the base here? I have written that 77.7 in the base of 8 octal, isn't it? So 77. Oh, sorry. Oh, wait. Okay, what if I write like this? Can you solve this? You have to say that this question is wrong. Just because when you have a base of 8, you can always have from 0 to 7 only. Okay. मैं एक दो क्वेश्चन वैसे देने वाला था, मैंने बोला छोड़ो अभी जुल्म ना करें. तो 77.78 is the octal. So most simplest way to solve this question, okay, there are two ways to go for this. Either convert this to decimal, and then like a two-step procedure it would be, you convert this to decimal, then convert it to hexadecimal, isn't it? So we expect a question mark here in hex, right? So क्या आएगा इसका बोलो step? You convert into decimal. What is that? You start with the decimal point. 7 into बोलो 8 to the power plus 7 into 8 to the power plus बोलो decimal के इधर का 7 into कितना आया बोलो. So this is, yeah, how much it is? 63.875. Is that okay? So this is in what? Tell me what it would be in the hex. अब hex के लिए वही same procedure होगी. Divided by 16. Okay. Deal with the decimal part and the fractional part separately. Okay. Take this decimal part 63. बोलो. Divided by 16. बोलो. 16. अभी क्वेश्चन कितना आएगा? Is that okay? 16 threes are 48. उसके beyond जाओगे तो 64 आएगा, isn't it? 16 4 is 64, so you don't have to take that. Okay, that is the quotient, and the remainder is how much that is? Huh? 15. So 15 by 16, how much it is? Quotient is 0. Remainder is? Huh? Oh, sorry. No. Wait a minute. The quotient we have already. Wait a minute. So, yeah. So, no. We are taking 3 by 16. Yeah, it should be 3 by 16. Remainder we leave it. So 3 by 16. Yeah. Tell me. 3. Is that okay? What is that? 3? Many people have written that as 15. यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो बराबर लिखा उन्होंने 3 उसके बाद हाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट लो मल्टीप्लाई बाय, यू नीड टू मल्टीप्लाई टिल द फ्रैक्शन वैनिशेस. ओके, सो 0.875 मल्टीप्लाइड बाय 16 बोलो. हाँ ओके, 14 लोगों ने यहाँ पे डॉट लेके 14 लिखा, विच इज इनवैलिड. Syntactically it's invalid. Okay, because 14 is represented as E, so you must write E. मतलब भावनाओं को समझ सकता हूँ आपके कि 14 E मतलब 14 ही होता है, पर मैं मार्क्स नहीं दे सकता हूँ. क्यों? क्योंकि that is syntactically wrong. Okay, so this is the right answer, 16. Is that okay? I think you have done that. Many of you have done. Okay. The other way would be you simply convert this to binary. I think what Parth has done. Yeah, so you simply convert this to binary. Now 8 binary convert करके मतलब 8 bit binary भी हो सकता है, 16 bit binary भी हो सकता है, पर ये octal में दिया हुआ है ना, so 3 bit binary fit कर दो, because to represent
8 means 0 to 7 maximum digit, you require only 3 bits, isn't it? So you convert it to 3-bit binary digits. What is that? You tell me. 1 1 1. After that, sabhi 1 hai na? Dot 1 1 1. Okay. You represent it with 3 bits. Now you have to go for 16. You represent it with 4 bits. Okay. Go for that. Grouping of 4. Start with the decimal. Okay. 4 bits. 4 bits. Remaining are 0. How much is that? 3. F. What about this? Here it's 0. As simple as that. Those who have gone for either methods, I have given the marks. Okay. Those who have given written as 14, I have deducted the marks. एक ही मार्क का था 0. Okay. Binary mark. Is that okay? कितना सिंपल था ये? 1 मार्क. कि जिनको अभी मैं एक्सप्लेन किया तो इतना टाइम लगा, नहीं तो ये हार्डली 1 मिनट के अंदर ही होता है. तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. After that. और जिन्होंने रॉन्ग किया है वो अभी सॉल्व करने वाले हैं. ओके, यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ इन योर कॉपी. हाँ, क्वेश्चन 1b, डैश कोड्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स. व्हाट इज दिस सेल्फ कॉम्प्लीमेंट? आई हैव रिटन. मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कि मैंने ये पढ़ाया हुआ है. देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में लेक्चर बोलो, आपके नोट्स पढ़ लो. अभी मेरे पास रिकॉर्ड मुझे ढूंढना पड़ेगा. सबसे पहला isn't it? ये कौन सा लेक्चर था तब? जैन में था ना? 11 जैन. हाँ, ये यहाँ पे एक्सरसाइज 3 ये यहाँ पे लिखा हुआ है. देखो यहाँ पे प्रूफ देखो, मैंने पढ़ाया हुआ है. देखो यहाँ पे ये दिख रहा है एक्सरसाइज 3 सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग. ये यहाँ पे क्यों, वो भी मैंने बताया था. यहाँ पे एरोज मेंशन किए थे मैंने. वो कहाँ गए? वो एरोज नहीं दिख रहे. सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग मीन्स व्हाट? What is the advantage of that? So the most beautiful advantage of this XS3 code is, let me come to that. So question 1b, dash codes are called self complementing codes. So those are, no, that is one of the examples. Okay, so question 1b, so that is XS3. सब लोगों ने ग्रे कोड लिखा और उसका एक्सप्लेनेशन तो और भी पैथेटिक था. मतलब समझ में नहीं आया कहना क्या चाहते हो. XS3 कोड इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड. व्हाट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग? यू टेल मी. सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग मतलब क्या? खुद का कॉम्प्लीमेंट. मतलब टेक एनी एग्जांपल. व्हाट इज XS3? टेक 0 इन डेसिमल. ओके, 0 इन डेसिमल, कन्वर्ट इट टू बाइनरी. ओके, what is XS3 code of this? You add 3. Okay, so add 3, that will become in decimal, that is equals to 0 0 1 1 in binary. Is that okay? Self complement, you take the complement of this, you will get 9's complement automatically of this. Okay, ये क्यों जरूरत पड़ती है? देखो subtraction में, okay, when we go for subtraction, we go for r's complement subtraction or r minus 1's complement subtraction. Okay, now for that you will have to convert a given binary number to r's complement or r minus 1's complement and then add it. Now to avoid that, okay, you simply, if you simply reverse the bits, okay, if you simply complement the bits, okay, you directly get the 9's complement. Isn't that very simple? So you simply reverse these bits, okay, complement the bits 1 1 0 0. This represents the 9's complement of the original number. So what is this? What is this? 11. है ना? मतलब क्या? 12 again. हाँ, 12. Sorry. 12 in decimal. What should be the XS3? Now this is 9. Oh, sorry. 1 0 0 in binary. That is, बोलो. Isn't that 9's complement of 0? So 0 का जो 9's complement है वो XS3 में सिंपली 0 का अगर complement कर दो तो मिल जाएगा. समझ रहे हो? यहाँ पे 0 का जो XS3 रिप्रेजेंटेशन है उनको, उस रिप्रेजेंटेशन को, okay, if I simply complement that representation, I'll directly get the 9's complement of the original, okay, not in XS3.
Got it? So that's why these codes are called self-complementing. Okay. So you could have given an example. Hardly 1 मिनट लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आपको सच में पता है तो. Okay. Alright. Any question till now? How many of you have gone wrong for this? किन लोगों ने गलत किया ये? Almost all. मतलब बाकी लोगों ने सुना क्लासेस में, ओके, तुक्का नहीं मारा. हमने बहुत सारे कोर्स लिए थे, BCD लिए, XS3 लिए, ग्रे कोर्स लिए, और कौन से कोर्स लिए. ऐसे जो कोर्स है मैंने एक्सप्लिसिटली सबके एडवांटेज बताए थे. BCD क्यों करते हैं हम, एडवांटेज बताया था मैंने. XS3 को, ग्रे कोड का मैंने एडवांटेज बताया था. क्यों? के मैप में दिख रहा है ना, एडवांटेज पूरा के मैप में रिफ्लेक्ट होता है. एक्सप्लेनेशन मतलब घुमाने की कोशिश की आपने, बुरा लगा है मेरे को. Question 1C. This problem I have given you as a homework and also a standard problem from Morris Mano exercise का एक standard problem है, और मैंने वहाँ पे explicitly mention किया है कि आपको 3 literals तक reduce करना है. I would have been cruel to say that reduce it to as less literals as possible. But मुझे पता है कि 3 literal का है तो टारगेट फिक्स होता है, नहीं 3 literals तक कम कर रहा है तो इसका मतलब और भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है. ओके. I think only a few people were able to do that. How many of you were able to do it correctly? X plus y plus z इसका आंसर. सिर्फ 5 बंदे, 5-6 बंदे. Let's see. Let's go one by one. Okay, what is that? You tell me the expression. Okay, I won't remember that. 1C. जिन्होंने नहीं किया वो अभी सॉल्व करने वाले हैं. अभी सॉल्व करो, मेरे साथ सॉल्व करेंगे सबके सब. क्वेश्चन 1C. बोलो प्रॉब्लम. अच्छा जी, ठीक है. x बार y बार दोनों के अलग अलग बार हैं, z का पैरेंथेसिस का बार प्लस z प्लस xy प्लस wz. यू नीड टू रिड्यूस इट टू 3 लिटरल्स. मैंने आपको प्रायोरिटीज बोली थी. व्हाट आर दोस प्रायोरिटीज ऑफ द बुलियन अलजेब्रा? Okay, first you deal with the parenthesis. Okay, deal with the parenthesis. Now first you need to solve this. Okay, now here you can apply De Morgan's theorem. Okay, बार काट के एक एक के सर पे डाल दो. कितना हुआ बोलो? x बार y बार का बार मल्टीप्लाइड बाय दिस का बार. एक बंदे ने ये खा गया, आंसर गलत. आप अच्छा बंदी ने खा गया. ये देखो, ये बार नहीं दिया, गलत. z प्लस आप इसको कंबाइन नहीं कर सकते हो. ओके, z प्लस z वाई, यू कांट डू दैट. एक्स वाई प्लस w z. बोलो प्रायोरिटी यहां पे आएगी ना, x प्लस y, ये ठीक है, इनटू z बार. इज दैट ओके? आई विल राइट इट फॉर जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग. एक्स वाई प्लस w z. आगे बोलो. बोलो. आई कैन गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव. यहां पे क्या लगाया मैंने? डी मॉर्गन ना. एक बंदे ने अच्छे से लिखा हुआ है हर स्टेप पे, ये क्या लगाया, ये क्या लगाया, एंड सो ऑन. ओनली अ फ्यू ऑफ यू हैव डन दैट. एक्स जेड बा प्लस वाई जेड बा प्लस जेड प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू जेड. ओके, उसके बाद बोलो कैसे सिंप्लीफाई किया जाए इसको. हाँ, एक्स वाई ये वाला. हाँ, तो इसको मैं कंबाइन कर सकता हूँ. ठीक है, z कॉमन ले लो, कैसे भी करो. हाँ, ओह सॉरी, ओके, सेकेंड लास्ट टाइम गलत लिखा. एक्स वाई जेड. ओके, तो उसको मैं कंबाइन नहीं कर सकता हूँ. तो या व्हाट कुड बी कंबाइन? दिस एंड दैट. ये भी कंबाइन कर सकते हैं दोनों को. ठीक है, एक्स प्लस वाई का इंटू जेड बार प्लस, बोलो ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं. नाउ जेड इफ आई टेक इट कॉमन, ओके, इट विल बी 1 प्लस डब्ल्यू. 1 और एनीथिंग इज 1, isn't it, logically? So z
Okay, so 1 plus w, that is gone, right? That is only 1 plus xy. Is it okay? Is it okay? अब मैंने कंबाइन करके डिस्ट्रीब्यूट करके कंबाइन करके क्या मिला? कुछ नहीं ना, इसको वैसे रखेंगे, वही भूल भूलैया, ठीक है? x z बार प्लस y z बार। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स 3 टर्म आ गए तो बोले 3 लिटरल्स, नहीं, टर्म्स एंड लिटरल्स का मैंने पहले ही डिफरेंशिएशन बताया हुआ है। लिटरल मीन्स ओनली वन वेरिएबल। ओके, ये कितने लिटरल हुए यहाँ पे बोलो, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। एक्स जेड बार प्लस वाई जेड बार प्लस जेड प्लस एक्स वाई, बोलो कितने लिटरल्स हैं यहाँ पे? 7 लिटरल्स है, लोगों ने 4 लिख के रखे हैं यहाँ पे। 3 टर्म्स में रिड्यूस नहीं करना है, 3 लिटरल्स मैंने बोला। लिटरल्स मीन्स अ वेरिएबल। ओके, नाउ यू टेल मी, अभी क्या करना है? कौन सा कंबाइन कर सकते हैं? z, ये वाला, और you can combine how? So I can simply apply this, plus you can distribute it again, isn't it? So if I take it as ये पास वाले कर लेता हूँ मैं, x z bar, okay, you can do y z, y plus z into z plus z bar, is that okay? Plus ये कौन सी प्रॉपर्टी है बोलो? Distribute again. Okay, you are distributing the logical OR, right? ये गया, बोलो क्या बचा? x z bar प्लस y प्लस z प्लस x y, is it okay? अब बोलो y को ले सकते हैं, y और xy को, कितना हुआ बोलो? x z बार प्लस x प्लस y एंड y प्लस y इज नथिंग बट, ये कौन सा कंबाइन कर सकते हो आप कौन सा कंबाइन कर लो बोलो? अच्छा, y कॉमन ले रहा हो, ठीक है, मतलब बहुत सारे वेज है इसमें, ठीक है। यू मे गेट एन ऑप्टिमाइज्ड एक्सप्रेशन विद इन फ्यू स्टेप्स आल्सो, ठीक है। y कॉमन ले लो, y बोलो 1 प्लस x गॉन प्लस z, इज दैट ओके? 1 प्लस x इज 1। आगे बोलो कितने लिटरल्स हुए? 4 लिटरल्स। लोगों ने यहाँ पे 3 लिटरल्स लग के छोड़ दिया है क्योंकि उनको मार्क्स दिया है मैंने। x z बार प्लस y प्लस, बोलो z ना, z को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बोलो x प्लस z मल्टीप्लाइड बाय, ये लोगों को पता ही नहीं है प्रॉपर्टी है, हमने डी मॉर्गन्स का प्रैक्टिकल में लिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव कर सकते हो वेरी सिंपल। x प्लस, बोलो z प्लस z बार प्लस z प्लस y, दिस गॉन, क्या हुआ? हाउ मेनी लिटरल्स? नाउ इट इज 3। टर्म और लिटरल में फर्क है, ओके, ये बात मैंने समझाई हुई है, वीडियो लेक्चर्स देखो। नाउ इज इट ओके? किन लोगों को ये x प्लस वाई प्लस जेड सही आया है, एकदम करेक्ट? 1 2 3 4 5 6, काफी वैलिड रिजल्ट रहा है। मतलब जिन लोगों ने जो सॉल्व करना चाहिए उन्होंने वो सॉल्व नहीं किया, जिन लोगों ने सॉल्व एक्सपेक्ट नहीं था उन्होंने सॉल्व किया, मतलब अनएक्सपेक्टेड था सब। दैट मींस पेपर वाज इसका मतलब ये है कि हर एक पार्ट कुछ लोगों को सही तरीके से समझा है, पर सभी पार्ट सभी लोगों को अच्छे से नहीं समझे। इसका मतलब मैंने तो अपना काम कर दिया है, पर only a few of you were able to grasp certain portions of whatever I have taught nicely, okay, and that portion varies from person to person. हाँ, क्वेश्चन 1 टाइम हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 1D बोलो क्या है? ये सिंपली आर्स कॉम्प्लीमेंट, कितना सिंपल है। बहुत लोगों ने गलत भी किया, मतलब मोस्ट ऑफ यू वर एबल टू गेट दिस करेक्टली, बट some of you have done mistakes. आर्स कॉम्प्लीमेंट 3 1 2 10 माइनस 4 3 1, आर क्या है यहाँ पे? 10, so you have to go for 10s complement, okay, so 3 1 2, what is 10s complement of 4 3 1? You tell me.
10 में से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, पहले 9 से सब्ट्रैक्ट करो फिर ऐड करो 1. ओके, यू टेल मी. 9 मैं डायरेक्टली 10th कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ. So 6 here, is that okay? 5 6 9, that is the 10th complement. This 10th complement of 4 3 1. So simply add this. Bolo. Okay, 8 8 1. Is that okay? Now there is no carry. नो कैरी. मैंने अच्छा सा एकदम अच्छे से टेबल बना के बराबर एक्सप्लेन किया कि अगर कैरी नहीं होता है तो इट इज दिस इज इन आर एस कॉम्प्लीमेंट. आंसर इज इन आर एस कॉम्प्लीमेंट एंड नेगेटिव. सो व्हाट इज द आर एस कॉम्प्लीमेंट? आर एस कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये 10th कॉम्प्लीमेंट. 10th कॉम्प्लीमेंट इसका क्या हुआ? माइनस में ना. द करेक्ट आंसर. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वर एबल टू गेट दिस. नेक्स्ट. लेट्स कम टू द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन. देखते हैं कितना डिफिकल्ट है ये. क्वेश्चन 2. उसको पहले अच्छे से पढ़ो. एन एलिवेटर, मुझे लगा समझेगा नहीं तो मैंने लिफ्ट भी लिखा है ब्रैकेट में, इज इंटेंडेड टू ऑपरेट एट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड टेरेस. दैट मीन्स एट 4 places it has to stop. Then a user is expected to enter the destination floor number in binary. I have explicitly said that. A motor, okay, the motor which is used to operate the elevator rotates in one direction when the user wishes to go for higher floors, and rotates in opposite direction when lower or current floor numbers are entered. बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि ठीक है, मतलब उन्होंने इमेजिन ऐसा किया कि हम लिफ्ट में गए, ठीक है, तो कौन से बटन होते हैं, ग्राउंड 1 2 3 4, और उस हिसाब से उन्होंने प्रॉब्लम डिजाइन किया. उन्होंने अच्छे से प्रॉब्लम पढ़ा ही नहीं. उन्होंने ये बोला है कि यूजर हैज टू एंटर. एज्यूम करो कि लिफ्ट के अंदर जाने के बाद सिर्फ आपके पास 2 स्विचेस है, पुल डाउन. 0 0 नीचे, दोनों नीचे करते हो तो 0 फ्लोर पे जाओ, 0 1 करते हो तो फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, एंड सो ऑन. दैट मींस यूजर इज एक्सपेक्टेड टू एंटर द डेस्टिनेशन फ्लोर नंबर इन बाइनरी. दैट मींस हाउ मेनी इनपुट्स आर. स्टेप 1 बोलो. स्टेप 1 ये सबसे इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है. इसको अगर मिस कर दे तो सामने पूरी गधा मजदूरी है. इफ यू मिस दिस स्टेप यू आर गॉन. Okay, if you do this step correctly, only one person, I think Mayur has done that. Mayur, you solved this? No, but I have given marks for that, right? So you can take it. जिन लोगों ने नहीं लिया वो ले सकते हो. Take it. Alright, so number of inputs, you tell me, number of inputs required. Input variables. दो क्यों लगेंगे? Those 2 are sufficient. Okay, I should not dedicate one switch for each and every floor because that is redundant. I said that you have to enter the floor number, destination floor number in binary. Okay. So 2 switches or 2 bits are sufficient for that. Okay. So number of inputs 2. ये 2 किस लिए लिए? डेस्टिनेशन के लिए. डेस्टिनेशन फ्लोर ना. अब वो बंदा कहीं पे भी रह सकता है, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर. लिफ्ट को पता कैसे चलेगा कहाँ जाना है? मतलब लिफ्ट शुड बी एबल टू नो व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ द लिफ्ट, इजंट इट? व्हाट इज द करंट पोजीशन? उसके लिए 2 इनपुट और लेंगे. I mean current position may again be 0, ground floor, first floor, second floor and terrace. So there will be 2 variables which will be required. Okay, so let me write that 2 variables for destination, 2 variables for source, right? Both of them are inputs. Inputs to what? User के नहीं, circuit के inputs. Okay, these are the inputs to the circuit, right? Whatever circuit we are designing, okay, this will be obtained from what? The source के जो है, okay, the source inputs will be obtained automatically because as I said, the lift gets stopped automatically at the destination floor, isn't it? So the source or the current position will automatically get. Okay, but you have to give it
as an input to the circuit. What is the number of output? The motor has to be operated either clockwise or anti-clockwise, one direction or opposite direction. So only one variable is sufficient for motor. This is output. That's it. मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है, मैं पहले जो सही है वो बता देता हूँ. लेट इट बी ए बी सी डी एंड सो ऑन. ओके, सो मैंने अलग तो इसको ए बी, जस्ट बिकॉज दे आर सोर्स ए बी सी डी, कैन डू एनीवे. ओके, दोज आर ओनली द वेरिएबल्स. नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज. सो लेट्स स्टेप 2 बोलो. ट्रूथ टेबल. This is the most important step after the first step. Okay, another important step. बोलो क्या रहेगा. ए बी, उसको पहले सोर्स तो पता चले क्या है, उसके बाद डेस्टिनेशन. दोनों अगर बराबर रहा तो वो जज करेगा मतलब मोटर को किस तरीके से घुमाना है, isn't it? So motor has to be operated. The task is simply to operate a motor. Okay, by getting to, by knowing what is the source, what is the destination, isn't it? Because I being the lift, I would know what is the source, what is the destination. Let it be motor or wire. हाँ, 4 variable है. Maybe I may be at ground floor. I may wish to go to ground floor itself. I can say that okay, I may accidentally press the same flow. Okay, and I've said that if a user enters the same flow, okay, it rotates in anti-clockwise direction. Okay, so you don't have to go for this. Okay, motor rotates in opposite direction. So I'm denoting 0 for opposite and 1 for in other direction. Okay, so clockwise or anti-clockwise. So or it may be upward or downward. I may be at ground floor. I may wish to go for the first floor. Go to the first floor, isn't it? बोलो कैसा घूमनी चाहिए मैं मोटर. It wish to operate. A user wish to go to the higher floor. So clockwise, ठीक है, या फिर clockwise बोल तो it should rotate in one direction at least. Okay, one. I may be on ground floor. Now once it reaches the first floor, it will automatically stop. Okay, I've said that. Okay, and in the question before I've said that assume that the lift automatically stops. Okay, as it reaches the destination floor. All right. Then I may be at the ground floor. I may wish to go for the second floor. What should I write it here? 1. बोलो 0011. Third floor directly जाना है terrace पे. बोलो. This is one combination. I may be at I may be at first floor, right? I may be at first floor 0001 01 01. I may wish to go for ground floor, first floor, second floor और third floor. बोलो यहाँ पे नीचे जाना है ना, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जाना है. बोलो 0. यहाँ पे still 0 just because I have mentioned that. Okay, I have mentioned that even if it is same floor, you go for 01. Then बोलो 01 से 10. That means first floor से second floor पे जाना है. बोलो 1 1 and so on. You complete this table. 1 0 1 0 1 0 1 0. बोलो 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0. ग्राउंड पे जाना है इसको, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है 0. बोलो यहाँ पे 0 यहाँ पे एंड सो ऑन. 1 1 के लिए बोलो 0 0 0 1 1 0 1 1. इतना रहेगा सभी जीरोस, isn't it? 0 0 0 0. ऑल राइट. इसके बाद सब कुछ गधा मजदूरी है. ओके, बोलो इसका इक्वेशन बोलो क्या आएगा. फटाफट के मैप बनाएंगे इसका इक्वेशन. पहले तो नाइन गेट का इम्प्लीमेंटेशन है. नाइन गेट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे पॉसिबल है? फर्स्ट यू रिप्रेजेंट ऑल दिस इन एसओपी फॉर्म. यू सिलेक्ट वेयर एवर देयर आर वंस. ये 1 है ना, ये 1 है, ये 1 ये 1 और ये 1. बोलो एक्सप्रेशन क्या आएगा y का. बोलो
ए बार बी बार सी डी बार सी बार डी सी बार डी और बोलो ए बार बी बार सी डी बार ए बार बी बार सी डी बोलो ए बार बी सी डी बार ए बार बी सी डी और ए बी बार सी डी। ये अगर मिल गया तो आपको एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको सर्किट रिलेशन मिल जाएगा। बोलो इसको कैसे करना है। 4 कितने एंड गेट्स लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड गेट्स लगेंगे। डू दैट टिल 6th one A1 to A6। बोलो कितने इनपुट्स लगेंगे इसको, 4 इनपुट्स ए बार बी बार सी बार एंड डी। Okay, all this you OR it, right? OR it. Then you get this AND OR combination. You can very well convert this to NAND combination. How? You simply replace this AND gate and OR gate with NAND and NAND. So AND OR is equivalent to NAND. ये बताया था, ठीक है। So replace AND OR with NAND. The time allowed to be allotted for this question is, I think 15 to 20 minutes. 15 minutes to 20 minutes are more than sufficient to solve this problem. I think 15 to 20 minutes are okay. बचे कितने, आपको 40 minutes बचते हैं। 40 minutes में remaining paper you can solve, because first question hardly take 10 minutes or so, 10 to 20 15 minutes, and rest how many minutes are remaining there, 15, yeah, 20 minutes again, 15-20 minutes for third question. If you divide the time properly you won't get the, ठीक है। ये हो गया। K-map solve कर सकते हो, ठीक है। I won't go for that, you can directly enter the app। You tell me the optimized expression for this। Yes, how much is that? Yeah, what is that optimized expression? Y a bar c plus a bar b bar d plus b bar c d, ठीक है। क्वीन मैक्लूस की से भी सॉल्व करेंगे इसको, ओके। यू मस्ट गेट द सेम एक्सप्रेशन, देन कितना हो गया ये क्वेश्चन 1। ऑप्टिमाइज द एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, डन। क्वीन मैक्लूस की आई विल लीव अप टू यू। क्वीन मैक्लूस की इन लोगों को ये समझ में नहीं है, क्वीन मैक्लूस की, बी ऑनेस्ट, सबको समझ, सॉल्व भी नहीं किया, बताओ। ये यहाँ पे एसओपी, रियलाइज द एसओपी एक्सप्रेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। बोलो कितना मल्टीप्लेक्सर लगेगा, कितने लाइन का, मिनिमम सिलेक्ट लाइन मल्टीप्लेक्सर। डब्बा ड्रॉ करना था आपको, सिर्फ 1 मार्क दिया है उसको, कितना बोलो। टेबल, ये ट्रूथ टेबल को देखो, 3 इनपुट लगेगा, देखो ट्रूथ टेबल को। I am taking these 3 inputs as a select line, okay। See here, the output is D. What about this? The output is 1. What about this? The output is 0. यहाँ पे बोलो output is 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे D and so on। कितने लगे, 8 इनपुट ना, 3 सिलेक्ट लाइन, 8:1 marks, sorry, yeah, 8:1 marks, okay। Try to realize using less marks. Is it possible for less marks, less select line marks? Is it possible? तो आपको सिर्फ एक डब्बा ड्रॉ करना है। This is multiplexer representation, okay, this one। So what was the first one? D था ना, उसके बाद what was that? D1010 D and so on।
थ्री सिलेक्ट लाइन्स कौन कौन से रहेंगे? आउटपुट y इज इट ओके? इसके लिए 1 मार्क था, सिंपल। नेक्स्ट, आई थिंक कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। सोर्स डेस्टिनेशन, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू हैव टू रियलाइज दिस इन द लैब, ओके टुडे। आज की जो लैब होगी आपको रियलाइज करना है। मोटर के लिए डीसी मोटर अवेलेबल है, realize this expression in the lab, okay, and see if the motor really rotates. Think of it. Then question 3 A. अब देखो, बहुत लोगों ने मतलब इंटेलिजेंटली सॉल्व किया इसको, आई रियली अप्रिशिएट। और मैंने ये देखा कि गेट के क्वेश्चंस बहुत लोगों ने अच्छे से सॉल्व किए, दैट वाज रियली अप्रिशिएटिंग। बट अच्छा हुआ मैंने 10 मार्क का सेकंड क्वेश्चन नहीं डाल दिया है। 10 मार्क का जैसे उधर एग्जाम में दिया है ना उनके, आई थिंक फॉर ईसी पीपल 10 मार्क्स 1 क्वेश्चन। आई वाज प्लानिंग टू डू दैट, 15 मार्क्स 1 क्वेश्चन। पहला गलत तो पूरा गलत। तो you may expect these things in the final exam or in the second session, you may expect, yeah. So these were gate questions, okay, some very simple questions. First step, whenever you see this circuit, first step is to break this circuit and write intermediate expressions, okay. यहाँ पे intermediate expression बोलो, ये क्या होगा? AB, यहाँ पे ABC, ठीक है, क्योंकि C B and input है। So ABC XOR with BC AB का XOR, okay. You tell me the expression. You tell me the expression ABC का XOR ABC का XOR with, बोलो, हाँ, AB XOR BC, ये सही है, ऐसा ना? It is why, is it okay? अभी इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहले तो इसको बुलियन एक्सप्रेशन वाइज सॉल्व करो और देखो कि यहाँ पे मैच हो रहा है। और जिन्होंने ऐसा किया है, ओके, कुछ लोग तो स्टक हो चुके हैं, कुछ लोग स्टक हो गए थे यहाँ पे बीच में, अरे ये ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है। और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत नहीं है, सब सही है। और ओनली अ फ्यू ऑफ यू वेर एबल टू गेट दिस एक्सप्रेशन, ओके, द थर्ड वन, ओके, दिस इज द आंसर, थर्ड वन, ओके। 2 वेज, एक तो बुलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व करो या फिर डायरेक्टली गो फॉर द मेथड ऑफ इंडक्शन, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करो, ओके। ट्रुथ टेबल में क्या क्या लगेगा, बोलो? A B C, बोलो ABC, उसके बाद AB BC, फिर AB XOR BC, उसके बाद ABC, आई मीन वायर लिख देता हूं मैं, ठीक है, सिर्फ XOR करना है। 3 input XOR means it's an odd detector, okay, odd number of ones, so simply have to do that। and ये होने के बाद फिर जो लोग ट्रुथ टेबल से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, those who go for the truth table they have to go for an extra thing also, okay। सभी 4 जो ऑप्शंस हैं उनको वेरीफाई करके देखना पड़ेगा उनको। and who are intelligent enough, अच्छा वो मैंने 4 ही ऑप्शन दिए, 10 दिए होते तो you have to go for the optimal expression using Boolean algebra, isn't it? So best way, those who are comfortable with Boolean algebra, जस्ट द प्रॉब्लम फर्स्ट, ओके, कैसे इसको सॉल्व कर सकते, क्योंकि गेट में इंपॉर्टेंट है आपको आंसर लाना। गलत हो गए तो निगेटिव मार्क मिलेगा, पर कॉन्फिडेंटली लाना है, गो फॉर दिस मेथड एंड फास्ट इनफ, फास्ट चाहिए, गो फॉर ट्रुथ टेबल, ओनली 4 ऑप्शंस आर देयर, इफ द ऑप्शंस आर नॉट गिवन गो फॉर बूलियन अलजेब्रा एंड गेट दैट, ओके, द ऑप्टिमाइज्ड एक्सप्रेशन, ओके। यू कैन, द आंसर इज सी, बोलो क्या है? B into C plus A, जो भी है, A plus is the correct answer, third one, right? Then किसका लेक्चर है अभी? ऑफ है, मैं इतना टाइम ही क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 3B, बोलो। एक और सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, यू हैव टू गो विद द सेम प्रोसीजर, गो विद द सेम प्रोसीजर। टेल मी द F एक्सप्रेशन, X XOR with Y, ओके, इसको एंड लगेगा, किसको? Z XOR with X, अच्छा, X
XOR Y XOR Z का complement, isn't it? Can you solve by yourself without truth table? Okay, do that without truth table. Go for Boolean. Yeah. I think. Right. Check for any discrepancies in your answers. I'll come to you. I'll come to you. I can detect it. देखो आंसर सही आ रहा है फुल मार्क्स फाइनल सबको नहीं
solve the questions which you fail to answer in your class. You have to solve by using the method. Please do that. तो आपको बार का इम्पोर्टेंस पता चला एक बार
एक बात भूल जाओगे तो आंसर गलत होगा।
Ready? Can you come and solve the third C? Yes. You solved nicely in very simple step. Come here and solve. I have to. I want to put it on record. That's why. Third C. It's only two steps. Yes. Oh, sorry. B. C. You did. You solve the expression or expression? Kind of. Next page. The pages पे plus. Pages plus.
For example, see in such questions, all of you listen. जैसे ये क्वेश्चन है गेट का जो मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पे सिर्फ ऑप्शन टिक करना। आप सिर्फ ऑप्शन टिक करोगे और जस्टिफिकेशन नहीं दोगे, आपको मतलब मार्क्स एक्सपेक्ट ही मत करो। आपने ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ 1-0 करके मार्क्स लाए हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ रफ में कैलकुलेशन करके किए हो, तो मेरे को कैसे पता चलेगा? आप दिखाओ वहाँ पे जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग है। आई जस्ट वांट टू सी हाउ यू गॉट दैट आंसर। इट शुड नॉट मियरली बी लाइक यू नो यू हैव उसके भी तुक्का, मतलब ये नहीं दिखना चाहिए कि तुक्का मारे या फिर किसी का देख के। मैं तो ऐसे समझ नहीं, क्योंकि कैसा कि आपका अंडरस्टैंडिंग अगर इसमें लिखता है तो मार्क्स कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है नो जस्टिफिकेशन नो मार्क्स। सॉरी, आपका जो भी लॉजिक है, मैं जरूरी ऐसा नहीं बोला कि ऐसी लॉजिक से सॉल्व करो, नहीं, जो भी लॉजिक है वो दिखना चाहिए। नहीं वो क्या बोला मैं, देखो यार बोलो इसके लिए कितने, अभी आपको मैंने सभी सवालों के जवाब बता दिए। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कितने टाइम है? 1 मिनट, पहले इसके लिए 2 मिनट 3 मिनट ले लो, उसके बाद इसके लिए 5 मिनट, सी क्वेश्चन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री के लिए और 2 मिनट 30 मिनट, और नीचे के लिए और 3 मिनट, कितने लगेंगे? 15 मिनट, 15 पकड़ लो, इधर उधर देखिए, 15 मिनट के लगे। इसके लिए बोलो 20 मिनट ले लो, 20 मिनट कितने हो गए? 35। इसके लिए बोलो कितने मिनट जाएंगे? 3 क्वेश्चन 10 नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। मैं बोल रहा हूँ कि टाइम सफिशिएंट, छूट भी गया तो 1-2 मार्क्स का छूटना चाहिए। 13 तो लाओ, कहाँ है 13 तो लाओ, 13 मार्क्स दिखाओ, 10 के ऊपर 1 करना। अगली बार है ना, मैं सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आधा घंटा, जब आपको प्रिपेयर होना है एग्जाम के लिए तो ऐसे टाइम बहुत इम्पोर्टेंट। एक काम करो सब ओके, इस बार का गेट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो 2017 16 में जो आईएएस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में भी हिंदी लगना रहता है। ठीक है, अभी मैक्सिमम डिजिटल सर्विस में अभी हमने जो लिया होता है पूरे कॉम्बिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम सीक्वेंशियल पूछता है, इसमें मेमोरी तो हम अभी स्टार्ट करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट सीक्वेंशियल एंड दोस आर द वन व्हिच आर मोस्ट आस्क्ड कॉम्पिटिशन एनीवे। मैं भी उसको ज्यादा तो आपको मोर ऐसा है कि मे बी एक्सपीरियंस टू गेट जितने भी पीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके सबका कंपैरिजन सबका सॉल्व होगा। अभी तक के कॉम्बिनेशनल सर्विसेज पे कॉम्बिनेशन मतलब the output is dependent only on the current state of the current memory of it doesn't save anything. Okay? There is no feedback path of saving the output. Okay, output क्या है आएगा तो 2 इनपुट के जो भी इनपुट है sequentially it may take into consideration previous one that we are going to see in this combination. You know that? She has solved this done. ये सबको मिला? किन लोगों ने इसको algebraically solve किया हुआ है? ये ऐसे algebraically very good. Just really appreciate. मतलब truth table तो कोई solve करते हैं. ओके, ठीक है, तो जिन लोगों के मार्क्स बड़े हैं, जस्ट गिव मी